इनएक्टिस शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनएक्टिस जो कि एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करता है ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। और सिर्फ इंडिया में ही इनएक्टिस 150 से भी ज़्यादा कॉलेजेस में मौजूद है और करीबन 250 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं इनएक्टिस से जुड़ी पार्टनर कंपनीज। तो इसके पहले हम आपको इनएक्टिस से जुड़ी इन पार्टनर कंपनीज और उनके प्रोजेक्ट से मिलवाएं। चलिए जानते हैं क्या है इनएक्टिस और कैसे ये काम करता है। इनएक्टिस, जिसका लक्ष्य पैसे कमाना नहीं बल्कि समाज के उन हिस्सों को उजागर करना है जहां पर लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन साधनों की कमी के चलते जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इनएक्टिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और इसका लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस के 17 डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। इसमें स्टूडेंट्स, एकेडमिक मास्टर्स और बिजनेस लीडर्स एक साथ ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं जो जरूरतमंदों को बेहतर जिंदगी प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त बनाती है। इनएक्टिस इंडिया इनएक्टिस वर्ल्ड वाइड की एक सब्सिडियरी की तरह काम करती है और देश के 150 से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एक्टिव है। इनएक्टिस इंडिया द्वारा लिए जा रहे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें से एक है कारगिल इंडिया। हमने बात की सिराज चौधरी से और जाना कि उनके लिए इनएक्टिस इंडिया के क्या मायने हैं और साथ ही इनएक्टिस से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए उनका क्या मैसेज है। Seeing the kind of projects students are involved in, what kind of changes you want to see in those projects and in which area they can improve? I've been associated with Inactis, I've been judging their events for the last few years, and one has seen more professionalism coming into the projects which are being brought forward by their students. One of my ask or desire would be to see projects having more or larger impact. I've seen projects which are very good, but the net benefit or the total number of people impacted are still small. And when we are sort of putting a large organization behind such efforts, and there is, students, the corporates, Inactis as an organization getting involved, I think the scale of impact has to become bigger. And this becomes important also when we go out and compete in the region, in the global contests. The scale being small somewhere limits us. So Inactis Worldwide is running this program One Race to End Waste. So how students can work in that area? This whole race to end waste is at different levels. So when we talk about, if I specifically talk about food waste, what happens in India is actually food loss, which is the crop or the products which are lost between the field until they get to the consumer, because we do not have the infrastructure and the processing. In the West or the developed world, what you see is the waste, where food is produced, it gets into consumers' homes or plates and then gets lost. So there are concepts like food banking, where there are, in India we're trying to work on a mechanism where which you say that fine, organizations like hotels, caterers, or even people at home can give up their surplus food to organized agencies who can handle them with care, certify them for quality and distribute it to people who need it. So food banking as a concept can actually integrate very well in this race to fight the waste. Cargill is associated with Inactis Worldwide. There must be something about Inactis, that's why you are investing your time and money. What is that? Cargill obviously is working with Inactis for many years globally. The whole energy that comes, the understanding of how the young generation is thinking. In India, what encourages me that these are students who are on the verge of setting out to build their careers. I think it's the association of the young generation, and in India particularly, when we talk about the demographic dividend, it actually is very encouraging to see students who are all from good colleges. These are people who are just on the threshold of stepping into a professional life, and this organization actually creates within them a sense of social responsibility, which they will encounter as they go into their corporate careers, because that today has become a mandate because of the government efforts. But I think this volunteerism, which is very important, and an awareness of your surroundings, the responsibility towards society, that is inculcated fairly early in a professional career through the activities of Inactis. Thank you for talking. You're welcome. Thanks. आज हम आपको जिन दो टीम्स से मिलवाने वाले हैं वो दोनों ही टीम्स अपने प्रोजेक्ट से प्लास्टिक बैग्स के रिडक्शन की ओर काम कर रही है। इसके अलावा इन दोनों ही टीम्स में एक बात और भी कॉमन है। दरअसल ये दोनों ही टीम्स अपने प्रोजेक्ट से ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रही हैं जो आपकी और हमारी ही तरह हैं,
लेकिन सोसाइटी उनको इतने ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं बात कर रही हूँ बॉन्डेड लेबर्स और ट्रांसजेंडर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेंगलुरु के KLE लॉ कॉलेज से और उसके बाद मिलेंगे भुवनेश्वर के किट के स्टूडेंट से। इस सफर में हमारा पहला स्टॉप था बेंगलुरु, जहां हम मिले KLE सोसाइटीज लॉ कॉलेज के स्टूडेंट से। यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपने नॉलेज और लर्निंग का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बदलने की ओर कदम बढ़ाया है। इनएक्टिव्स KLE एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 में हम लोगों ने 20 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया था। इट मेनली फोकस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो उसी टाइम पे हम लोग को पता चला कि कर्नाटका में प्लास्टिक बैन हो गया है, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग पेपर बैग्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जीविका फाउंडेशन के साथ मिलके, वो लोग बंधुआ मज़दूरों के साथ काम करते हैं, तो हम उनके साथ मिलकर के, जो बंधुआ मज़दूरों की फैमिली है उनके साथ मिलकर के हम लोग पेपर बैग्स बना रहे हैं। इस सोच को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहा है प्रोजेक्ट कलाकृति, जो इनएक्टिव्स KLE लॉ कॉलेज का पहला प्रोजेक्ट है। हम लोग का जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट कलाकृति, जिसमें हम लोग पेपर बैग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये बैग्स वही जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनकी वाइफ्स या फिर उनकी फैमिली में से ही कोई जना बनाता है हमारे लिए। रुकावट कितनी भी क्यों ना आए, अगर किसी काम को करने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में फंडिंग की कमी से जूझना पड़ा, लेकिन ऐसी परेशानियां भी स्टूडेंट्स के जज्बे को रोक नहीं पाई। इनएक्टिव्स टीम ने खुद इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रोजेक्ट का बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था, तो वो जनरेट करने के लिए इनएक्टिव्स KLE का जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं, उन्होंने थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट किया था। तो उससे हम लोग का कैपिटल जैसे ही जनरेट हुआ, हम लोग ने थोड़ा रॉ मटेरियल ख़रीदा एंड हम लोग गए विलेज में जो नागनायका हरली है वहाँ पर गए, और जितने भी महिलाएं थी हमने उनको ट्रेन किया। हम लोगों ने बॉन्डेड लेबरर्स की फैमिलीज़ को टारगेट किया था, क्योंकि उन लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी सोसाइटी नहीं मिल पाती है काम करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे जाके उनको अप्रोच किया, जिससे कि वो लोग एक थोड़ा इंडिपेंडेंस से, एक स्ट्रेंथ अंदर से एक स्ट्रेंथ आ पाए उनके अंदर, और वो लोग उस सेंस ऑफ प्राइड से प्राउडली सोसाइटी में रह पाए। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो जितने भी बैग्स बनते हैं वो या तो हम अपने कॉलेज के जो सिस्टर कंसर्न्स हैं उनके फेस्ट में बेचते हैं, या तो हम रिटेल मार्केट में भेजते हैं। और अभी हमारा फ्यूचर का ये प्लान है कि जितने भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो CSR में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। हमारा ध्यान सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा है, प्रॉफिट की तरफ उतना नहीं है। और हम जो महिलाएं हमारे लिए काम कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ काम करने में कंफर्टेबल हों, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करें, और हम कुछ जो भी हम अर्न करेंगे वो बैग्स बेचकर वो सारा प्रॉफिट महिलाओं की तरफ जाएगा, और जो 10-15% जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम अपने आगे की प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट से जुड़कर महिलाओं ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर पहला कदम लिया है। कलाकृति ने भरोसा दिला रहा है कि एक छोटी सी और अच्छी शुरुआत जिंदगी को बेहतर बना सकती है, और इस कार्य में इनएक्टिव्स के स्टूडेंट्स की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। KLE के स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही ये नेक कोशिश को हम सलाम करते हैं।